Welcome to Average Indian Joe. Thank you for watching my series, The Resilient Voices. Passion is a significant multiplier of human potential. Passion fuels perseverance. Passion also ignites creativity. Today we will be meeting such individual who's very passionate. She is an artist, writer, photographer, model, and an avid biker. I'm delighted to invite Shweta Iyer to our series as a guest. Graduated from Sir J.J. Institute of Applied Art, Shweta continued her passion and continued making an impact in society. She held her exhibition in Jahangir Arts Gallery as well as in Manila, Philippines. I'm sure you will enjoy this conversation. I would like to welcome Shweta Iyer to our series. Please enjoy the conversation. Welcome to Average Indian Joe, Shweta ji. Thank you so much. It's a pleasure to have you to my series. Same here. I was very impressed with your profile. So when I had a first conversation with Swati and when she told me about you, I was very much looking forward to have conversation with you, mainly because of your multifaceted personality. Thank you so much. You are a writer, you are a photographer, you're an artist, model, interior designer, freelancer, avid biker, and what else? An actor. So an actor, yes. So I thought this will be a good conversation mainly because one of the reason why we have this uh, video log is mainly because I wanted our viewers to get inspired with different stories and mostly uh, understand how to be resilient in their life and then try to pursue something which they feel passionate about. So, how was your day? My day was very good. And wish you a very happy birthday. Thank you so much. Thank you so much. I know. I think today is a special day. I'm assuming that you are going to have a good party today evening. Already started. My good day is already started. No, nice. But I hope our conversation will give you more energy today. Correct, correct. I'm looking forward to it. Yes, thank you. So Shweta ji, growing up in a middle class family, right? Uh, most of the expectations from the parents are like either kid will be engineer or doctor, right? How did you navigate through that mindset and chose to become an artist? That's my first question. My whole group would love to hear, what inspired you. Okay. So first of all, thank you so much. मुझे इस मंच पे आने का आपने मौका दिया और आपके सवाल की तरफ जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी एक्चुअली ये छोटी सी एक कहानी है। सो उसी तरीके से मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि मैं इंस्पायर कैसे हुई और मैं आर्टिस्ट कैसे बनी। तो Sure. ये जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तो मेरे नेबर्स जो थे वो बेबी सिटिंग लिया करते थे। तो वहाँ मैं अक्सर जाया करती थी कुछ बुक लेकर के, उनके यहाँ पे पढ़ती थी, लिखती थी, ड्राइंग करती थी, ऐसे ही मतलब वो क्लासेस लेती थी, ट्यूशन्स भी लेती थी। मैं ऐसे ही उनके यहाँ जाया करती थी और बुक पेन लेकर के। मुझे पेन बहुत अच्छा लगता था, पेंसिल नहीं अच्छी लगती थी। तो ऐसे हुआ कि वहाँ पे उनके टेबल के ऊपर एक दिन फ्रूट बास्केट था। तो Okay. बनाना, एप्पल, ऑरेंज सारे फ्रूट का बास्केट भरा हुआ था। सो मेरा जो बुक था, वो मैं उस दिन लेने गई थी। तो मैंने क्या किया उनके जो सारे फ्रूट्स थे ना, उसके ऊपर मैंने ड्राइंग कर ली। और वो जब उन्होंने देखा, उनके हस्बैंड ने देखा, तो उन्होंने कहा ये बच्ची ने तो बहुत अच्छा ड्राइंग किया है करके, तो इसके फैमिली को बताना चाहिए। तो वो आए और सबसे पहले मेरे दादाजी को बताया कि आपके बेटी ने बहुत अच्छा ड्राइंग किया है, बताइए किस पर? तो उन्होंने बोला किस पर? बुक पर नहीं, हमारे घर के फ्रूट्स पर। तो बनाना की स्किन के ऊपर, ऑरेंज की स्किन के ऊपर, एप्पल के ऊपर मैंने ड्राइंग करी हुई थी। तो आए और मेरे दादाजी बहुत खुश हो गए ड्राइंग देख कर के।
वो तुरंत मुझे स्टेशनरी पास के स्टेशनरी में लेकर के गए और उन्होंने कहा तेको क्या चाहिए? तो फिर मैंने बताया उनको ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। उन्होंने सारी ला कर के दी मुझे एंड फ्रॉम देयर माय जर्नी स्टार्टेड एक्चुअली। फर्स्ट तो मेरा वॉल्स जो थे घर के सारी दीवारें जो थी, वो ही मेरा बुक था। देन मैंने उनके फ्रूट्स के ऊपर ड्राइंग करी। फिर मुझे वो सारा सामान लेकर के दिया। मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है घर से। अ, ये नहीं था कि पहले कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं करना है, कुछ पता नहीं था उस वक़्त। लेकिन मुझे पूरा एक्सप्लोर करने दिया उन्होंने, मुझे जो चाहिए वो करने दिया और मैं लाइक 10th स्टैंडर्ड काफ़ी सारे अवार्ड्स मैंने जीते हैं। मैंने इंटरमीडिएट पास किया एंड मुझे था कि मुझे कहीं न कहीं मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, लेकिन मुझे कैसा बनना है, क्या बनना है, मुझे कुछ पता नहीं था। देन वन डे माय फादर ही टूक मी फॉर अ वैकेशन। मुझे वीटी लेकर के गए, सीएसटी घूमने के लिए ऐसे ही। तो हम जहांगीर आर्ट गैलरी गए एंड देन वी वेंट टू सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स जहाँ पे मेरा एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया है पूरा। तो वहाँ लेकर के गए तो मैंने डैडी को बोला कि मुझे यही करना है, मुझे पेंटिंग ही करना है, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वो सब करना है। एंड देन जहांगीर आर्ट गैलरी मुझे कहा मेरा ड्रीम है कि मुझे यहाँ मेरी पेंटिंग होनी चाहिए, कभी तो। एंड देन 12th मैंने कॉमर्स लिया एंड देन वो क्लियर किया बहुत अच्छे मार्क्स से। एंड देन जो जीजेस की जो एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस, वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की और फिर वहाँ मेरा दाखिला हुआ एंड देन द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। फिर वहाँ से जो ड्रीम्स हैं मेरे बढ़ते गए, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। सो वो सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। सो आपका इंस्पि सो घर का माहौल था, वो इसी तरह से बनाया हुआ था कि आपकी जो इंस्पिरेशन है, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। करेक्ट, दादाजी हो या फिर मम्मी-पापा हो। यस, So they were your big supporter बिग सपोर्टर। throughout your यस, यस। uh, growing journey. यस, यस, डेफ़िनेटली। मेरा पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे जो चाहिए वो करने दिया। मतलब मुझे हर फ्रीडम दिया मुझे कि मुझे क्या करना है। मुझे बाइक चलानी है, मुझे कार ड्राइव करनी है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टर बनना है। ये सारी चीज़ें थी जो बचपन में ही मुझे पता थी कि मुझे क्या-क्या, क्या-क्या करना है। एंड मैंने सारी चीज़ें मुकम्मल करती आई हूँ मैं अभी तक के। So I was very surprised when I was reading your book, right? And I'll come to that topic. या, But in in that book, when you are talking about acknowledgements, right? You said to your mother that you become my elder sister, right? And I'm sure this is not a very loose statement, right? It must have a lot of emotions behind that. Can you just elaborate, if you don't mind, please? श्योर आई वुड लव टू। एक्चुअली मम्मी मेरे लिए वो एज डिफरेंस भी बहुत कम है हम दोनों के बीच। माय मम्मी शी गॉट मैरिड एट अर्ली एज एंड मैं उन्हें बहुत जल्दी हो गई। सो हमारे उम्र बहुत ही कम है, गैप बहुत ही कम है। सो मुझे हमेशा से ही ऐसा लगा कि मैं मेरी बड़ी बहन के साथ ही बात कर रही हूँ एंड मुझे मेरे मॉम ने बहुत ही फ्रीडम दिया और कभी ऐसे लगा नहीं मुझे कि मॉम है मेरी। तो मुझे इतना फ्रीडम था मैं कुछ भी उनसे शेयर कर पाती थी, कुछ भी बोल पाती थी, कोई भी चीज़ पे डिस्कस कर पाती थी। खाना बनाने में काफ़ी हम दोनों दूसरे को हेल्प करते हैं। मैं 6-7 स्टैंडर्ड से ही मम्मी को काफ़ी हेल्प करती हूँ। सो और मम्मी को मेरे एक्चुअली प्रॉब्लम थी। शी वाज़ हैविंग अ फ्रोज़न शोल्डर अगर आपने सुना होगा तो। तो उन्हें बहुत ही अर्ली एज में वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी एंड फिर उसके चलते मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी काम सिखाया घर का। मैं 6-7 स्टैंडर्ड में ही Hmm. काफ़ी काम करने लगी थी। तो उस बीच हमारी बॉन्ड बहुत ही करीब हुई और भी। तो That is the reason she is a elder sister to यस you, एंड काफ़ी and she समझने supported you शी सपोर्टेड मी लाइक in एनीथिंग। every aspect of your life. यस, She has been like your guide, mentor, यस, which is very nice to have, right? Not many people get that kind of यस relationship, एंड right? दैट इज़ व्हाट आई वांट कि सारे घरों में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए
मैंने मेरी किताब में भी यही चीज़ें मेंशन की है कि ऐसे बॉन्ड होने चाहिए अपनी माँ के साथ। No, absolutely. I think that turns your life little bit differently, because when you have somebody who's supporting within family, you get that courage करेक्ट, करेक्ट। to try different येस, things. येस, डेफिनिटली। And so you did your uh, schooling from JJ School of Arts, येस। right? And I know that you're basically you had your exhibition at Jahangir Art Gallery as well as in Manila. How was the experience, and was it like one of the biggest milestones in your life? येस, ऑफ कोर्स आई विल से, एंड मेनी मोर टू कम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू Yes, एवरीथिंग। absolutely. सो जहांगीर आर्ट गैलरी में की जर्नी ऐसी रही है। जब मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जब मेरा स्कूलिंग चल रहा था, तो हम अक्सर वीकेंड्स पे या कॉलेज के दौरान हम जाया करते थे। वो बहुत ही कॉलेज के पास है। सो वहाँ जाते थे और बहुत अलग-अलग किस्म के आर्ट देखने को मिलते थे। हर आर्टिस्ट कोई आर्ट वर्क ऐसे होता था कि हम उसमें खो जाते थे। सो मुझे ऐसे लगता था कि ये क्या है? ये कैसे कर पाते हैं? ये कैसे करते हैं ये लोग? क्या सोचते होंगे उसके पीछे? सो वो सारी चीज़ों की पढ़ाई करके मैंने तय कर लिया था कि मुझे भी एक दिन, आई थिंक हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि एक ना एक दिन मेरा एग्ज़िबिशन ज़रूर जहांगीर आर्ट गैलरी में हो। Definitely. और मेरा भी वही था कि मुझे ये करना है, और मैंने वो जहांगीर आर्ट गैलरी में ही बोला था मेरी फ्रेंड को। सो मैंने कहा था मुझे यहाँ एक दिन तो एग्ज़िबिशन करना है, एंड वहाँ का प्रोसेस बहुत बड़ा है, लंबा है। उसे वहाँ जल्दी नहीं मिलता है किसी को भी। सो 1 सालों लगते हैं वहाँ। तो मुझे था कि मुझे यहाँ एग्ज़िबिशन करना है, एंड देखो वो हो गया 2022 में। और फिर जब वहाँ एग्ज़िबिशन हुआ तो और एक्सप्लोर करने का मन किया, और एक्सप्लोर करने की चाह और बढ़ने लगी। सो मुझे लगा कि अभी मुझे इंटरनेशनल भी जाना है। सो वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई और मैं उसे करती गई, और यूनिवर्स ने मुझे वो चीज़ें दी। उसकी पढ़ाई बहुत गहराई में करनी पड़ती है, और वो मैंने की, और कहीं न कहीं वो सपने मैंने पूरे किए। मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैंने सपनों को कभी खुद के सपनों को कभी रोका नहीं। मैंने हमेशा से बड़े सपने देखे हैं और कोशिश की है कि मैं उसे पूरा भी करूँ। So on that topic, right? On that topic, right? You have a very positive personality, and you're a very hardworking individual, right? So, and I was reading your book, right? And I'm sure you must be having a dream or mission in mind, right? So, and you're working very hard to achieve that, just like you said, right? Journey from that, small kid who are drawing the uh, uh, painting on a fruits, right, Yes. to the Jahangir Art Gallery. It's a journey, Journey, right? yes. And it's a hard work. It's not like easy, right? You had to sacrifice lot of things. At the same time, uh, you had to be very disciplined in your path. And as you so do you think that you have accomplished your dreams, and what are those dreams, and if you haven't, then what is the path to achieve those dreams? देखो, सोना तो तप कर ही निकलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आए हैं, स्ट्रगल भी बहुत हुआ है यहाँ तक पहुँचने में। बट मेरी जो तैयारी, जो यूनिवर्स जो चाह रहा था कि मैं ये सारा स्ट्रगल देखूँ, इसमें और गहराई में जाऊँ, तो Hmm. तभी तुम निखरोगे ना। तो वो चीज़ों की तैयारी हो रही थी, यूनिवर्स मुझे तैयार कर रहा था उन चीज़ों के लिए। और फिर मुझे लगा कि अभी मुझे कहीं तो एक जगह मिल गई है, जहाँ मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया है। और स्ट्रगल एज़ इन आर्ट वाइज़ तुम देखो तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों से आपको गुज़रना पड़ता है, तभी आप निखरोगे, तभी आप दिखोगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और मेरी किताब में भी पूरी की पूरी वही स्ट्रगल है, ममता है, प्यार है, प्रेम है, बहुत कुछ है। सो पूरा एक कॉम्बिनेशन है
किताब में भी और पर्सनल जर्नी में भी मेरे वही रहा है। I just want to let you know that I think, and my viewers as well, Shweta ji, Shweta ji's book, right? Hazari Bagh. मैंने इस किताब को recently पढ़ा है. Shweta ji, you have captured sensitive stories which are centered around women empowerment. How personal is this topic for you? And what are your thoughts about whole women empowerment topic, especially with what's going on around the world at this हम्म। point of time? अ, ये मैं एक्चुअली बहुत सारी महिलाओं से टकराई हूँ अभी तक के इस उम्र तक के, और मैंने कई सारी कहानियाँ सुनी हैं, कई सारी कहानियाँ उनकी स्ट्रगल सुनी है, कुछ अच्छी सुनी है, कुछ मेहनत की सुनी है, कुछ बहुत ही बोलते हैं ना कि दुःख वाली कहानियाँ भी सुनी हैं, और मैंने देखा है कि औरत के पास में बहुत ज़्यादा ताकत है। हर चीज़ को मतलब वो पूरा घर सँभालती है, वो बच्चे को भी बड़ा करती है, वो नर्स बनती है, वो टीचर रहती है बच्चे को बड़ा करने में। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं से पढ़कर नहीं आई हैं ये सब। तो वो जो है वो सारी Correct. चीज़ें एक औरत में इनबिल्ट है, और वो सारी चीज़ें करने के लिए एक औरत को उसी के लिए बनाया है, इसको उसके लिए उसकी ताकत दी गई है, ये सब चीज़ करने के लिए। तो मैं मेरी लाइफ में कई सारी महिलाओं से टकराई हूँ। मैं ड्राइंग टीचर रह चुकी हूँ विबग्योर हाई स्कूल में। तो वहाँ पर कई सारी महिलाओं से टकराई तो कई सारी महिलाओं की अलग-अलग कहानियाँ होती थी। तो वो कहानियाँ मुझे अच्छी लगती थी। कभी कोई पेरेंट की कोई कहानी होती थी बच्चे से रिलेटेड, कभी कोई फीमेल जो ड्राइवर है, वो जो स्कूल बस चलाती थी, उनकी कोई कहानी होती थी। सो मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैं मेरे मॉम से भी काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। माय चाचीज़, मैं इंस्पायर रही हूँ। सो मेरी कज़िन सिस्टर्स, मैं इंस्पायर रही हूँ। हर किसी की अपनी एक कहानी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है। तो मुझे लगा कि अभी मुझे इन सब के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो उन सबको बटोर कर मैंने एक कहानी बनाई। कुछ फ़िक्शन है, कुछ इमेजिनेशन है, कुछ सच भी है, कुछ तजुर्बा भी है। तो वो सबको एक किताब में डाल कर के मैंने ये हज़ारीबाग किताब लिखी, और इसमें सारी महिलाओं की कहानियाँ हैं और उनकी स्ट्रगल की कहानियाँ हैं, और मुझे लगता है कि इससे हर कोई पढ़े, और ऐसा नहीं कि मोटिवेट हो, बट इसमें मुझे ऐसा लगता है कोई भी पढ़ कर के उसे यही लगेगा कि अरे ये मेरा किरदार है, मैंने भी इस किरदार को निभाया है। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे उन्हीं से आई, उनको मिल कर के आई, मेरी माँ से मिल कर के आई, मेरी बहनों से मिल कर के आई। So I was very happy when I was reading this book, because most of the stories that you have captured, whether it's fictional or real, right, has some or the other message, right? And it feels like you, when you were writing this book, you are very connected with those every single character, and it was reflecting very strongly in each of the chapters. I recommend people to थैंक यू। read this, and I will have your link uh, posted on my description box. They can buy this book. I enjoyed it, and I finished it in ओह 2 days, वाओ! maybe just one and a वाओ! half day, maybe. Yeah, yeah. I was. I love books. So, and obviously, you're women of steel, right? You're talking about Sindhutai यस, यस, Sakpa, यस। हाँ। Mary Kom, guiding stars, right? At this point of time, do you think you see more such inspirational women around you? यस, यस, आई डेफिनिटली सी, आई डेफिनिटली डू। और अभी सारी महिलाएँ देखो आप किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी पीछे नहीं है। वो आर्टिस्ट हों, एक्टर हों, कोई भी पॉलिटिकल हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो। मुझे ऐसा लगता है किसी भी क्षेत्र में महिलाएँ कहीं पर भी कम नहीं है। वो हवाई जहाज़ उड़ाना हो, कहीं भी पीछे नहीं है। सो बराबरी हो चुकी है, और आने वाले कुछ साल में और भी आप देखोगे कि बहुत आगे महिलाएँ आपको हमेशा अभी आगे ही दिखेंगी। मर्दों से कहीं पीछे नहीं रहने वाले। No, absolutely. I think in my business, right, I have a musical company,
I'm one of the partner, and 80% of our staff is female, Oh wow, great. right? And we are running such an incredible company because of those high performing at and then balancing house life at the same time professional life, right? And it's a very difficult job to do, right? I have heard, Shweta ji, that you are a avid biker, right? Which is quite inspiring, first of all, right? Uh, Growing up in India, I hardly seen women riding Royal Enfield. Did I pronounce it correctly? Correct, correct. Royal Enfield, right? I haven't seen many women riding that bike. Yes, yes, yes. I would like to hear more about how this started, and then is there anything that you want to say about it? Is this journey which can inspire other girls or women? Yes, yes, definitely. I'd love to share. इवन अभी ये भी एक कहानी है छोटी-सी। सो अगर आपकी Mhm. इजाज़त हो तो मैं इसे बताऊँ? Absolutely, go ahead, please. So, this journey started when I was in 10th standard and I was having my vacations. Uh, Mhm. so, मुझे मेरा फ्रेंड है उसे Mm. उसके पापा सिखा रहे थे बाइक एंड मुझे मैं साइकिल चला रही थी। तो मुझे था कि मेरे पास बाइक क्यों नहीं है? मुझे भी बाइक चाहिए और वो भी अच्छी वाली बाइक चाहिए। सो मैंने कहा कि उसके पापा तो नहीं थे देन वो अकेले ही चला रहा था ही वाज ट्राइंग टू स्टार्ट द बाइक तो मैंने उसको बोला मुझे एक बार बैठने देना बाइक पर मुझे सिर्फ बैठ करके देखना है कि मेरे पैर पहुंच रहे हैं कि नहीं एंड मुझे फील करना है कि कैसे रहता है बिकॉज साइकिल मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत चलाती थी सो उसने मुझे बैठने दिया एंड मुझे लगा कि वाओ एंड आई वाज फीलिंग वेरी गुड and my family is from police background so they had like biggest fan of Royal Enfield so वहाँ से वो क्रेज़ मेरे अंदर आया और मुझे था कि मुझे भी चलाना है और तभी कोई भी फीमेल नहीं चलाया करती थी सो इतना फ्रीडम नहीं था कि अभी तुझे बाइक भी दे दे हम चलाने के लिए सो मुझे पहले था कि नहीं मतलब अभी शादी करनी है कुछ हो गया कहीं लग गया क्योंकि हेलमेट्स वगैरह तभी इतने ये नहीं थे कंपलसरी भी नहीं थे और मैं तो 10th स्टैंडर्ड में थी। मुझे कहा कि तब तू 18 हो जा, फिर तुझे दे देंगे करके। तो मुझे ऐसे ही झूठ बोल रहे थे। उनको पसंद नहीं है, उनको बहुत डर लगता है अभी भी कि जब मैं बाइक वगैरह राइड करती हूँ तो। सो लेकिन मुझे था कि मुझे करना है बिकॉज़ माय फादर ही लव्ड रॉयल एनफील्ड, माय ग्रैंडफादर ही लव्ड रॉयल एनफील्ड। सो वहाँ से फिर मैंने बाइक चलानी सीखी और मैंने बहुत कम दिनों में बाइक चलानी सीखी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जोश था, मुझे सीखना था एंड मैंने सीख लिया। और फिर चलते-चलते मैं इन्फ्लुएंसर बनी नवी मुंबई में और फिर वो बिल्डअप होते रहता है और मुझे था कि सारे बंदे ही चलाते हैं, बंदी क्यों नहीं चलाती है? और आज अगर आप देखोगे तो इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है। बहुत सी बंदियाँ हैं वो चलाती हैं बाइक और रॉयल एनफील्ड ही चलाती है। और मैं मेरी सिस्टर मुझे देख कर के मेरी सिस्टर्स काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो लोग मुझे देख कर के बोलते हैं कि अरे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है तुझे देख कर के हमें भी चलाना है। सो काफ़ी मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर है, वो खुद चलाना सीखी हैं अभी। सो अभी हम कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। Oh, this is interesting, very inspiring because you know रॉयल इनफील्ड का वेट इतना होता है कि बहुत आप ज़्यादा। सिग्नल पे खड़े रहो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस इट, फर्स्ट ऑफ यस, ऑल, यस। एंड सेकंड व्हेन यू राइड इट, व्हेन यू कम होम, you feel like you literally was riding something on your back, एक्चुअली right? एक्चुअली बहुत ही हेवी है, बट जब चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये शान है, यही है। तो कुछ अलग तरीके का महसूस करते हैं आप? बहुत-बहुत अलग तरीके का महसूस होता है। जो ड्राइविंग करके मुझे महसूस नहीं होता है, वो राइडिंग करके मुझे फ़ील होता है। एंड जब हम राइड पर भी जाते हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है और फीमेल के लिए, फीमेल राइडर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सारे ही मेल राइडर्स भी कि अरे! फीमेल चला रही है करके। सो एक अंदर ही बहुत कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि ये मेल हमें देते हैं। सो ये वैसे चलता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अलग कॉन्फिडेंट है, बहुत अलग रिस्पेक्ट है एक फीमेल के लिए, जो मर्दों ने भी दिया है हमें कि फीमेल चला रही है बाइक। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। So you are a Mumbai girl. यस, You speak Marathi, आई स्पीक मराठी, Tamil, तमिल, Hindi, and English. यस एंड उर्दू भी मैंने How? सीखी है। So you have a big group of friend. फ्रेंड सर्कल बड़ा रहेगा आपका. ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। कोई भी फ्रेंड है नहीं, मेरी सिर्फ़ किताब है, मेरा पेन है, मैं हूँ, मेरे गाने हैं और कुछ सीखने का, कुछ करने का हमेशा मैं सोचती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे करना है, कुछ नया करने का कि इससे मेरे मेरे करने से लोगों को और मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ? जब भगवान ने सारी यूनिवर्स ने जब सारी चीज़ें मुझे दी हैं, तो मैं क्यों नहीं एक्सप्लोर करूँ? ज़िंदगी को क्यों नहीं एक्सप्लोर करूँ? तो मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ नया करने का और निभाती हूँ उसे बहुत बखूबी। So this is very interesting. So you basically try to learn new things, and यस, this is your constant journey, right? यस। For many years, that you learn so many things, right from being artist, uh, photography, right, and biking, uh, modeling also. So now, how do you? These are very different fields, right? I mean, obviously you use right brain for that, more creative. But how do you focus and balance your life? Because it's not easy. It's a struggle, uh, and lot of perseverance, right, throughout uh, executing these things. मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका जवाब मैं कहानी में दूँगी और ये आप अगर देखोगे तो जैसे एक्टिंग है, आर्टिस्ट है, राइटिंग है, ये सारी चीज़ें आर्ट फॉर्म है। सो आर्ट में मुझे पूरा फ्रीडम मिलता है कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ। आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने खुद को कभी रोका ही नहीं है। मुझे था कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है और हर चीज़ मैंने सीखी है। मैंने उस पर स्टडी की है, उसकी गहराई में गई हूँ और फिर मैंने उसको निभाने की कोशिश की है। अभी आपने फ़ोकस की भी बात करी, तो फ़ोकस पर मुझे एक अकबर बिरबल की कहानी याद आई। मैं सुना सकती हूँ? Okay. Yes, absolutely. Please go ahead. तो बीरबल के पास एक शख्स जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ और घर से निकलता हूँ जहाँ मैं काम पे जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो रास्ते में बहुत लोग मुझे ताने मारते हैं। मेरी शक्ल को, मेरी कलर को, मेरे मेरे रहन-सहन को बहुत ताने मारते हैं, मुझे बहुत बोलते हैं। तो मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँ? वो बहुत परेशान रहता है। तो बीरबल उसे कहते हैं तुम उसे एक बर्तन देते हैं, बॉल देते हैं और उसे कहते हैं कि ये बॉल को आप कट टू कट पानी से भर दो। जब आप घर से निकलोगे तो ये पानी से भरा हुआ भगोना आप लेकर चलना जहाँ पर आप काम पर जा रहे हो। तो वो निकलते हैं और एकदम पानी से भरा हुआ है और वो निकलते हैं। तो वो निकलते हैं तो जहाँ उनका वर्क स्टेशन है, तो वो उसके आगे ही निकल जाते हैं। फिर वो रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि अरे! मेरा वर्क स्टेशन तो मेरा पीछे रह गया, मैं तो बहुत आगे निकल कर के आ गया। तो वो देखते हैं कि इससे मैं तात्पर्य ये है, कहने की बात ये है कि जब भी आप फ़ोकस हो कि एक भी पानी का बूँद नहीं गिरना चाहिए, बीरबल में उन्हें कहा था। हाँ, तो पूरा फ़ोकस था, तो आजू-बाजू की आवाज़ उसे सुनाई ही नहीं पड़ी। तो वो अपने ही काम से आगे निकल कर के चले गए। सो जब आप फ़ोकस्ड रहोगे, जब आपका टारगेट है कि भई मुझे यही चीज़ हासिल करनी है, मुझे यही है, तो कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कुछ भी हो, कहीं आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो मेरा फ्रेंड ही मेरा टारगेट है। तो मैं यहाँ हूँ, मेरा टारगेट वो है, मेरा गोल वो है, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, बस अपने काम पे लक्ष्य देती हूँ और बस वही करती हूँ। Very nice, because it's easy for anybody to say that I want to achieve something, right? And most of the people make that uh,
as a, like, if they want to achieve something, they feel like it's a dream and it will be achieved it just by wishing and करेक्ट believing in it, right? But they don't act on it, right? So for us to achieve that, it is very important that we take those यस small steps. We have to do it, right, every single day, and then have a clear focus. So I always tell my friends and my group and colleagues, stating that, in life, hard work is important, but at the same time, consistency matters, right? If you don't do it consistently, you will not achieve it. घर बैठोगे तो दीवारें ही दिखेंगी, दीवारों के आगे तो आपको शायद ही कुछ नज़र आएगा। तो घर से निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। No, I agree. So what kind of music do you listen to? मैं बहुत ही सूफ़ी गाने सुनती हूँ। एक्चुअली मैं सब सुनती हूँ, बट मैं ज़्यादातर नुसरत साहब को सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कव्वाली सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आप सिंगर क्यों नहीं बनी? अगर आप इतना सब कुछ बनी हो, तो देखो, सिंगर ये क्यों ना नहीं बनी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गाती भी हूँ थोड़ा बहुत, मतलब अकेले में, किसी के सामने नहीं, अकेले में गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट मैं ज़्यादातर कव्वाली सुनती हूँ। मेरे ऐज के लिए वो आपको लग रहा होगा कि मैं कव्वाली सुनती हूँ, बट हाँ, मैं कव्वाली सुनती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है, अच्छी लगती है कव्वाली, वो है नाज़ो अंदाज़ से वो कहते हैं कि जीना होगा, ज़हर देते हैं और कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। देखो ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। मुझे वो कव्वाली बहुत अच्छी लगती है और मोहम्मद रफ़ी साहब की है और नुसरत साहब की भी कई सारी कव्वालियाँ मुझे पसंद है। तो मैं गाने की कोशिश करती हूँ अकेले में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी तो बन जाऊँगी सिंगर भी। No, absolutely. I think you can see whatever you decide, you have achieved it so far. And then I'm pretty sure with your personality and with your vigor and hard work, you'll be able to achieve anything that you want to become. Any last advice to people that who are watching this series? What exactly you would love to tell that 9 years old girl or 6 years old girl that will be inspirational, Shweta ji? अपने आप को बाँधो नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, जो चीज़ में आपका मन लगता है, वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करने का नाम ही ज़िंदगी है और मुझे लगता है कि फेलियर को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान बन जाएगी। बिकॉज़ नोबडी इज़ परफेक्ट, राइट? सो ये जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, कभी मैं फेल होऊँगा, कभी मैं फेल होऊँगी, कभी मैं कामयाब भी हो जाऊँगा। सो ये चीज़ों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो अगर ये चीज़ें आप पहले से ही एक्सेप्ट कर लो कि कहीं मैं फेल होऊँगा, लेकिन मैं उससे सीखूँगा ज़रूर। तो सीखते रहना चाहिए, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फेलियर का भी एक्सपीरियंस लो। क्योंकि आप जब बिखरोगे तभी आप निखरोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि Very nice. सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए और हारना नहीं चाहिए। और घरवालों के साथ आपको जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो जैसे आपने कहा 9 ईयर गर्ल या कोई फीमेल जिनके ड्रीम्स नहीं हो पाए हैं, उन्हें उतना फ्रीडम जो उनके साथ के लोग हैं या माँ-बाप हैं या हस्बैंड है या उनके घरवाले हैं, उन्हें इतना सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये मुझे पर्सनली मिला है ये सपोर्ट मेरे घर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट और अपने दिल को एक्सेप्ट करना कि मैं कभी हारूँगा, कभी जीतूँगा, कभी फेल। ये दोनों चीज़ बहुत ही मायने रखती है और ये दोनों चीज़ है तो आप लाइफ में जो भी आप सोच रहे हो, वो आप ज़रूर हासिल करोगे। और दूसरा चीज़ कि किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एट वेरी यंग एज आपको ये चीज़ें शुरू करनी चाहिए। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से इंसान का जो दिमाग है वो बहुत खुलता है और लिखते हो, पढ़ते हो, बहुत खुलता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्म्स आप समझ में आते हैं आपको। सो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हुए
आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन जो भी आप सोच रहे हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और कई सारी किताबें हैं, सीक्रेट किताब है, उसमें भी यही कहा गया है कि आप जो भी सोचते हो, जो भी आपको करना है, आपका लक्ष्य एकदम आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। तो आप अगर सोच कर के चल रहे हो, फ़ोकस हो, कहीं हिलोगे नहीं, तो आपको ज़रूर मिलेगा। Very nicely said, Shwetaji. I think this is very inspirational, and you have lived that life so far, and you have, you have achieved so much in a very short time, right? And I'm pretty sure in this journey you will achieve many milestones. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, and thank you for being on in this series with me, and uh, I definitely would love to speak to you again down the line, but wish you all the best for all your adventures. थैंक यू सो मच, आई एन्जॉयड इट एंड आई लव्ड इट कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया। मुझे पूरा यकीन है कि इसे जो जो भी इसे सुनेंगे, उन्हें ज़रूर कुछ मेरे से कुछ अच्छा लेने को मिलेगा। एंड जो आप मेरी आवाज़ इन सबको पहुँचा रहे हो उसके लिए बेहद शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे ये शो पर आकर के बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, आपके सवाल मुझे सारे अच्छे लगे। I hope you enjoyed this conversation. Shweta's dedication and determination to learn different things, obviously by putting extra amount of efforts to become master, whether it's acting or modeling or biking, has been very consistent and very impressive. These are the stories we are going to capture in our series. So, if you are an entrepreneur, business owner, artist, actor, writer, or social worker, and if you would like to be my guest, then please fill up the application form in my description box and you would be able to join me as a guest. Please subscribe to my channel and stay tuned for the next voices. Thank you for being part of Average Indian Joe. Good night.